from the beginning when we begin. We begin on a piece of paper which is just white paper and a pen. And we write the first line of the film, which begins with fade in. In case of Wazir, it was like faded, and the first line we wrote that it's raining and Danish Ali meets Ruhana. It's a very scary state, very scary. And at this moment, all of us, Abhijat, Raju, are going through the same state with the next film. It's scary. You have one piece of paper, you have one pen, you write one line, and you don't know how to follow it up. I had asked a great filmmaker, Akira Kurosawa, once how you write a script, and he said, fade in, write, fade out. Then he spoke in Japanese, which was the translator said, that's the only way you can write. So today, this little function we have, we are dedicating to the writers who are really the backbone of the film. Of course, we see stars who do great job. We have the stars here, we have directors here, we have, music people here, but the backbone is really the screenplay. If the screenplay is good, even a bad director cannot make a bad film. But if it's a bad screenplay, the best director, the best actor cannot make a good film. So this is dedicated to the writers today, and I would like to call my fellow writers, Abhijat Joshi and Raju Hirani, on stage to take this further. To introduce to you one of the finest writers in the film industry ever, who's present with us, whose name came before the name of any director or the actor. And I'm referring to Javed Saab, I'm very grateful he's here to represent this idea of a writer. And I'd like to now call Abhijat and Raju to take this further. Thank you. It's a little emotional to be standing here. This film is special for me because the seed of the idea for this film, Vinod told me the day I first met him. It was not to happen for many years, many years, more than a decade after that. But he told me about two chess players and the thriller around it, that far back in time. And then we attempted an English language film for 4 years called 64 Squares. And my learning in cinema, in screenwriting, I would say happened through that process of scripting. Vinod was my mentor through that process. And at the end of it, though that film could not happen at that time, it had equipped me, I believe, to be able to write Lagero Munna Bhai. Because Raju read that script and trusted me, after a few mishaps, I have to admit, but trusted me to write Lagero Munna Bhai with him. So this film is truly special for me. Vinod, I still call Alexia, which is based on the name of the character in the English film that we are attempting. Someday we'll make it, that film also. And it's a double blessing today because Javed Saab is here. Like Ekalavya, I think, why just all writers from in India must have learned their craft from him and Salim Saab. He's clearly the wittiest man I've ever met in my life. We used to hear the stories of Birbal, Oscar Wilde, Bernard Shaw. Sometimes we do not recognize that a Bernard Shaw or an Oscar Wilde is among us. And it's irritating that when we only hear about Coppola's and Scorsese's, we do not recognize talents of even greater dimension just because they are close to us. Javed Saab, I cannot tell you how much we have learned from you, and it's a real privilege, sir, that I'm able to say that to you in person today.
Thank you, sir, for coming. नमस्कार। राइटर्स की बात निकली है तो मुझे याद है कि एल्फ्रेड हिचकॉक से एक बार किसी ने पूछा था कि आपने बड़ी अच्छी फिल्में बनाई हैं, कामयाब फिल्में भी बनाई हैं, आपका रहस्य क्या है, आपका गुरु मंत्र क्या है एक अच्छी फिल्म लिखने का, एक अच्छी फिल्म बनाने का? तो उन्होंने कहा था कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए सिर्फ 3 बातें याद रखनी चाहिए। पहली बात, एक अच्छी स्क्रिप्ट। दूसरी बात, एक अच्छी स्क्रिप्ट। और तीसरी बात, एक अच्छी स्क्रिप्ट। तो आई एम हैप्पी हियर टुडे दैट इस फिल्म से काफी राइटर्स जुड़े हुए हैं। फरहान हिमसेल्फ इज अ राइटर जो इस फिल्म में एक्ट कर रहे हैं, अभिजात विनोद जिन्होंने ये फिल्म लिखी है, और सबसे खुशी की बात है कि जावेद साहब आज यहाँ हम लोगों के बीच हैं, जिन्होंने आई थिंक जो हिचकॉक, एल्फ्रेड हिचकॉक की कई भी बात है उसको इस खूबसूरती से अपनाया है। यानी मुझे नहीं लगता कि हम एक कामयाब फिल्म कहते हैं, हम एक फिल्म जो ज्यादा बिजनेस करती है कहते हैं कि बड़ी सक्सेसफुल फिल्म है, पर मुझे लगता है सक्सेसफुल फिल्म वो होती है जो जहन में घुस जाए। आप देखिए 40 साल पुरानी फिल्में जावेद साहब के, हम आज भी उनके डायलॉग बोलते हैं। मुझे नहीं लगता, आई थिंक जावेद साहब ने उस वक्त लिखते हुए सोचा होगा कि कोई 40 साल बाद आज कहेगा मेरे पास माँ है। तो हम कहेंगे आज हमारे पास। आई कंप्लीटली अग्री जो अभिजात ने कहा कि हम जब 10 बार अटकते हैं कहीं स्क्रिप्ट में, हम याद करते हैं और सोचते हैं कि जावेद साहब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हम पुरानी फिल्में निकाल के इनकी देखते हैं और सोचते हैं कि कैसे इन्होंने ड्रामा इनहांस किया, कैसे हर चीज को हैंडल किया, कैसे डायलॉग्स लिखे। वो तो आज भी हम मिलते हैं तो बस मैं तो हंसता रहता हूँ उनको मिलकर। सिर्फ इज एक्चुअली, मैं कहता हूँ कि आपको स्टैंड अप कॉमेडी भी करनी चाहिए लिखने के अलावा। तो आई एम हैप्पी इज हियर, और आई थिंक हम सब कह सकते हैं जैसे कि हमारे पास जावेद साहब हैं। हमारे पास जावेद, करेक्ट। Would like to welcome जावेद साहब on stage. और जावेद साहब ने एक बहुत कमाल की नज्म लिखी है, इस जो ये पढ़ेंगे आज। जो नज्म जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि ये नज्म ही वजीर फिल्म है, जो इन्होंने अभी मुझे सुनाई हाल में ही, मामी के दौरान हम लोग मिले महबूब स्टूडियो में। वो नज्म भी मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि ये ज़रूर आज आप सबको ट्रेलर रिलीज करने से पहले ये नज्म आपको ज़रूर सुनाए। शुक्रिया जावेद साहब। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं विनोद जी का, अभिजात जी का और राजू जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आवाज़ आ रही है आपको? For this very kind and generous compliment, which in all honesty I don't deserve. इस हद तक तो नहीं। ये सही है कि स्क्रीन प्ले एक तरह से कहना चाहिए कि ब्लूप्रिंट होता है फिल्म का, लेकिन जाहिर है कि वो कहते हैं गालिब की ज़बान में, कतरे से गोहर, गोहर यानी मोती, देखें क्या गुजरे है कतरे से गोहर होने तक। तो वो बहुत सारी स्टेज से जाता है, और वो जंजीर ऐसी है कि उसमें कोई भी लिंक अगर वीक हो तो एज दे से इन इंग्लिश, द स्ट्रॉन्गेस्ट चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट वीकेस्ट लिंक। तो वो चाहे डायरेक्टर हो या कैमरामैन हो या एडिटर हो या अल्टीमेटली सेंटर फॉरवर्ड टीम का जो होता है वो एक्टर होता है, जो अल्टीमेटली गोल पास करके उसे दी जाती है टीम में और वो किक करता है गोल में। तो कहीं भी अगर कोई कमी हो तो वो कमी दिखाई देती है, और कभी कभी होता है सही टीम बैठ जाती हैं, एक ऐसा प्रोड्यूसर जो तैयार है अच्छी फिल्म बनाने के लिए किसी भी कॉस्ट पे। ज़्यादा नाकतोल के अच्छे काम नहीं होते हैं, थोड़ी सी दीवानगी, थोड़ा सा इरेशनल एटीट्यूड भी चाहिए होता है, जुनून जिसे कहते हैं। एक डायरेक्टर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो समझ रहा है और बात को आगे ले जा रहा है, बजाय इसके कि उसे पीछे खींच रहा हो। एक एक्टर, मैं बहुत एक्टर को भी बहुत मानता हूँ। ये ख्याल है, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि दी ज़्यादा पपेट्स के भैया आपने उन्हें वर्ड दे दिए, बता दिया जहाँ खड़ोगे वहाँ तक चलोगे, ये मूड है, ये डायलॉग है, बोल दो। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि वो डायरेक्टर हो जो कि कैमरा के सामने नहीं आ रहा, या एक्टर हो जो कैमरा के सामने, उनके एस्थेटिक सेंस क्या है, उनकी अपब्रिंगिंग क्या है, उनकी सेंसिबिलिटी क्या है, सेंसिटिविटी क्या है, उनका टेस्ट क्या है लाइफ में, वो सब का सब फिल्म में दिखाई देता है।
वो किस क्लास को बिलोंग करता है। वो डायरेक्टर आपको वो फिल्म आप बना रहे हो किसी भी सब्जेक्ट पे, मगर उसके अंदर कोई छोटापन अगर है, कोई मैल है, तो उस फिल्म में दिखेगा। अगर एक्टर जो है उसको आप कोई भी रोल दे दिए लेकिन उसमें सोफिस्टिकेशन नहीं है, वो नहीं दिखेगा। उसके अंदर सेंस ऑफ डिसेंसी कम है तो वो दिखाई देगा। ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी डायलॉग उस क्रूडिटी को रोक नहीं पाएगा। तो अच्छी फिल्में जब बनती हैं तो कुछ ऊपर से नीचे तक सही पत्ते बैठ जाते हैं, कभी कभी होता है। मुझे खुशी कि हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा हुआ। बाकी ये कि जहाँ तक ये क्लब का ताल्लुक़ है, मैं तो ज़िंदगी में कभी कोई मैंने स्क्रीन प्ले पे आज तक किताब नहीं पढ़ी, हाउ टू राइट ए स्क्रीन प्ले, मगर मैंने ज़िंदगी में भी कोई किताब नहीं पढ़ी, हाउ टू लिव हैप्पीली, तो लेकिन फिर भी जिंदा हूँ। तो ये यू डोंट लर्न शूटिंग बाय मेल, यू लर्न बाय डूइंग इट। वो ऐसा है कि स्विमिंग तो आपको पूल में उतर के ही आती है, उससे पहले सीख लें फिर पूल में जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जहाँ तक जो यकलब की बात है, यकलब ने तो अंगूठा काट के अपना दे दिया था, मगर ये दोनों तो ऐसी फिल्में बना रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है हर फिल्म मुझे अंगूठा दिखाती है। दे आर मेकिंग सच ब्रिलियंट फिल्म। और मैं समझता हूँ ये एक ऐसी टीम है, एक बहुत एक्सप्लेनेशन आजकल दी जाती है, देखिए क्या है, बहुत डाइवर्ट हो गई है सोसाइटी। और वो पहले ज़माने में था एक कुछ कॉमनैलिटी थी, अब नहीं रही है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशियो पॉलिटिकल रीजंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस वक्त एक फिल्म बनाना जो क्रॉस सेक्शन और सोसाइटी को लगे ठीक मुश्किल है। भाई बड़े शहरों में हमारा एस्थेटिक सेंस और हमारी सेंसिबिलिटी उनसे मैच करती है, अब हमें क्या मालूम छोटे शहर में लोग अलग ही सोच रहे हैं। ये सब बहाने हैं, और इन बहानों में कितना दम नहीं है इसका सबूत इन लोगों की फिल्में हैं। ये भी तो इसी वक्त में फिल्म बना रहे हैं। क्या वजह है कि इनकी फिल्म क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपील करती है, वो चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे बहुत ही लेमैन हो। वो फिल्में जो हैं, चाहे थ्री इडियट्स हो या जो पन्ना भाई की फिल्में हों, किस तरह से समवेयर these people have they are on the same page with the whole society and if I may say so they are the only ones। तो ये तो बहुत इज्जत की बात है। और मैं तो ये मुझसे कह रहे हैं कि इन्होंने मुझसे सीखा है, शायद कभी सीखा होगा, लेकिन अब तो वक्त ये है कि मैं इनसे सीखूं। और ज़रूरी है वो कोई भी जनरेशन जो अपनी अगली जनरेशन से नहीं सीख सकती वो ऑब्सोलीट हो जाती है। ये ख्याल कि मैं किसी से पहले पैदा हुआ हूँ इसलिए मुझ में ज़्यादा अकल है, तो फिर ये मुझे मानना पड़ेगा कि जितने लोग मुझसे पहले पैदा हुए थे उनमें मुझसे ज़्यादा अकल है, और ये मैं मानने को बिल्कुल तैयार हूँ। तो ये तो इन ऑल ह्यूमिलिटी वन विल हैव टू एक्सेप्ट दैट today's generation has some certain sensibility which we borrow from them or learn from them, that will be our wisdom। तो कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इनके साथ गुजारूँ। अभी फिर कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन के लिए ले जाऊँ, देखिए कामयाब होता हूँ कि नहीं। और बहुत मुबारकबाद। मैंने इसके विदु जी वाज काइंड इनफ टू शो मी सम 10-15 मिनट्स ऑफ दिस फिल्म। अगर बाकी फिल्म उसकी 1/4 भी अच्छी है तो भाई कमाल की फिल्म है। दे वाज सो ब्रिलियंट, सो वेल शॉट। जो कहाँ हमारे डायरेक्टर साहब कहाँ बैठे हैं, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू, योर वर्क इज ब्रिलियंट और कमाल कर दिया आपने। बाकी बातें बाद में करेंगे। तो बहुत उम्दा। और फरहान और ये भी थी, बहुत अच्छा सबका ही काम था। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे यकीन है, ऐसा वो कहते हैं कि जो हांडी का एक ही चावल देखा जाता है कि गली के नहीं गली, ये हांडी गली हुई है। तो मुझे आई एम क्वाइट कन्विंस्ड दैट वी आर वेटिंग फॉर एन एक्सेप्शनली गुड फिल्म दैट विल परहैप्स रिलीज ऑन 8th of December। So let me be the first person to congratulate the team for the success of the film। Thank you। अरे हाँ, ऐसा होता है कि मदारी कहीं जाए तो उसे बिना तमाशे के नहीं छोड़ते, वो तो दिखाना ही पड़ता है। ये एक पोएम है जिसका टाइटल है ये खेल क्या है। तो कहीं पता नहीं कैसे इत्तेफाक से क्या बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि वो चेस पे मैंने 1-2 नज़में जिसमें मेटाफर चेस का लिया है, एक नज़म है तो मैंने सुनाई।
विदु जी को इन्हें बहुत पसंद आई तो उन्होंने फ़ौरन रिकॉर्ड कर ली। फिर उनका ये कहा कि भाई ये तो ऐसी है कि जैसे लगता है कि मेरी फिल्म की कहानी आपने इसमें लिखी है। तो चलिए जो भी है आप सुन लीजिए। इसमें जाहिर है कि बातें तो दूसरी हैं, लेकिन वो चेस की जरिया कहेगी। ये खेल क्या है? मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है, मगर मैं कब से सफेद खानों स्याह खानों में रखे काले सफेद मोहरों को देखता हूं। मैं सोचता हूं ये मोहरे क्या है। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे सिर्फ लकड़ी के हैं, खिलौने हैं, तो जीतना क्या है, हारना क्या, न ये जरूरी न वो है। अगर खुशी है न जीतने की न हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या है। मैं सोचता हूं जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लूं, ये मोहरे सचमुच के बादशाह हो वजीर, सचमुच के है प्यादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज रखती है जो कि मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूं तो सोचता हूं ये खेल कब है। ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जायज। कोई ये कहता है जैसे मुझसे ये जंग भी है ये खेल भी है। ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे कि जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। वजीर ही को है बस इजाजत कि जिस तरफ भी वो चाहे जाए। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है। प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। मैं सोचता हूं अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है। अगर यही है ये खेल तो फिर ये खेल क्या है। मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूं। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है। Now we will show you guys the trailer. Javed Saab is here on stage. They'll take this away, I guess. तो आप ट्रेलर देखिए, उसके बाद डायरेक्टर साहब से आपको मिलाएंगे और फिर डायरेक्टर साहब उनके जो एक्टर्स हैं उन सब से मिलवाएंगे। तो बैठिए ना आप। One thing that I want to mention here, that the last time we associated with Reliance was in Three Idiots. We have some people from Reliance here who worked with us on Three Idiots, and it was just amazing. Arun, Sameer Chopra.